To begin with, because I don't have my PPT ready, so I'll take 1 minute from here, then I'll move to the center stage. A kite rises higher and steadier when the wind resists it, not when it flows with it. In life, too, challenges and oppositions often give us the lift we need to grow, discover strength, and soar beyond limits. It ties perfectly with my journey as an actor, theatre practitioner, filmmaker, and festival director. Reflects how resistance and struggle have shaped my creativity and resilience. As an artist, I have lived my life in collisions between tradition and modernity, between theatre and film, between the local and the global. These collisions are not accidents, they are sparks. They challenge us, unsettle us, and ultimately transform us. In theatre, a collision happens when a performer's truth meets the audience's imagination. In cinema, it is when imagination collides with silence and a new meaning emerges. In festivals, it is when diverse voices, cultures, and stories collide to create a shared space of dialogue and discovery. Today I stand before you not just to share my achievements, but to share the story of resilience, learning, and growth that shaped them. Success for me has never been a straight path. It has been a journey of challenges, lessons, and breakthrough. The journey was not easy. There were moments of doubt, financial constraints, and setbacks that tested my patience. But each obstacle became a stepping stone. I learned that failure is not the opposite of success. It is part of the success. Every challenge taught me resilience and sharpened my vision. For me, success is not about the titles or recognitions. It's about impact, about inspiring others, uplifting communities, and proving that dreams can be turned into reality. My story is proof that with courage, discipline, and faith, anyone can rise above the circumstances. Journey, I mean that I have gone through a lot of struggles, collisions, hardships, what and what nots. And I mean it. As the anchor said, I started acting when I was just 13 years. That was in 1974. My journey began that time. I was in school. Then in college, I joined Radio Youth Services. I have done so many things in performing arts, and other than that, I have played some sports also, but not to excel in the sports. My playing sports was just to enjoy the sports and to love the sports. I was not a very good player in sports, but I used to play football, badminton, hockey, kabaddi, and so other games. But my journey of performing arts, you talk about acting, you talk about theatre, you talk about direction, then television direction, television acting, and filmmaking has been a very long and very, very difficult path. मुझको कोई सीधा रास्ता चलने का नहीं मिला था. मेरे पीछे को Godfather, even my parents did not want me to follow this stream. Never. They were deadly against me till I completed my post-graduation. Imagine. After PG, my parents said, okay, do whatever you want to do. Now you have completed your studies. Not completed, PG is not nothing, but still they said that you have crossed a level. Now you can do whatever you want to. Actually, I wanted to study arts or theatre or music in my college, but my parents did not allow. I had subjects of geology, geography, and chemistry. Very strange. But finally, I ended up, after my PG in geography, I joined even during my college and university, I was doing a little bit of acting and some stage shows. Or even in university, I was in culture club, singing ghazals, news for Mehmet ji, and also doing acting. Then in 81, final year of my PG, I was selected as the secretary of Culture Club of Kashmir University.
Then coming out of university, then I joined my this field of theatre practically and dedicated my whole time to the theatre. And you won't believe I used to do theatre. Doing a theatre is not so easy. You have to spend 2-3 hours for rehearsals for 1 month at least. I have done 3 plays, 4 plays at a time simultaneously, doing rehearsals from 4 till 11 in the evening. I used to come out from one group to join another group and doing 3 or 4 leading roles simultaneously. And those areas used to be around Habba Kadal, Ganpatiyar and Badiyar, and I used to live in Jawahar Nagar. So at 11 I used to go by foot. I had no conveyance at that time. From Habba Kadal in the night, and that time, but the situation was better. At 11 I used to travel to my home, that was at Jawahar Nagar, and everybody in the family was slept. Obviously, they used to keep my food in some katora with a lid so that it remains warm. So for so many years I have not had my dinner with my family. I used to have it alone. Then later on I consider, it's a bit funny, it was very difficult to call someone to open the door for me. Then I constructed a door on our back side which had keys from both sides, so that I don't disturb my family. I used to use that key and enter and have my food and sleep. So morning, my brother was already left for his job, my father was left, my mother also, they were around to leave for their jobs or respective things. Then I used to get up and work. So that has been the story. Then I did a job also. I'm telling you something very diversities of my life. It has not been on a single path or a straight path. I did a job also. I was in Forensic Science Laboratory for 4 years. But again, this acting का जो कीड़ा होता है ना, I was not, मैं कामचोर नहीं था. I did my job very well. But inside of my heart, I thought I won't be able to. I was doing justice with my job as well. But I thought it's better to stick to one thing. I left my job after 4 years. Then I joined completely performing arts, whether it was theatre, television, radio, whatever came in my way. I have done also anchoring, announcement, it used to call that time, announcer for some time, for 2 years, for radio as well as television. I have read news also. So yes, not from TV because my face was so familiar, so I did not want to touch TV news. I have read news from radio for 2 years. That finally I got a job, completed job, came back, and then I was working here and there doing acting, doing assistant directory, whatever came in my way. And finally it happened that I got a chance. There was a gentleman in Doordarshan, he said, why don't you try doing private productions? There was a scheme in Doordarshan where you could do productions as a producer and director. So I had to struggle a lot again. It was not so easy. Before that, I'll tell you, I passed my audition in radio and television drama, but I did not clear it in the first attempt. I have no shame in saying this. I failed the radio drama audition for twice, sir. Same happened with the television. I don't know what was the third term for me. I failed twice. Once I failed, another time the communication was not there. I did not receive the letter in time. Then somebody called me in Lacho. Hey, you boy, come here. You had appeared for the audition. I said, yes, I had. You did not come. I said, I did not receive any letter. No. You had cleared your preliminary, so come to TV. So then I was cleared, and before the audition was cleared, I was given a booking. Again, something very good. Something very bad and something very good. So I did a telefilm without getting my audition letter. After that, I continued for acting and whatever. Then in 88, there was a scheme of production. Again, one gentleman, my mentor told me that you should try, because you are not in any job. You should try and do this production, and you are a very hardworking boy. So I said, okay sir, I'll try. So I made a proposal. 2 proposals were rejected. I was a star that time. Acting में star था, लेकिन वो मेरे star किसी काम नहीं आया direction में या production में. उन्होंने बोला acting है तो अलग चीज़ है. He doesn't deserve any merit. This was the line written on my project. Deserves no consideration. I remember this. I remember the gentleman also who wrote this. Anyways, I kept fighting. That's my reason of telling you the whole story. मैंने अपनी जंग छोड़ी नहीं.
2 बार ऑडिशन में फेल हुआ, तीसरी बार पास हो गया। 3 बार मेरे प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं, और जब वे रिजेक्ट होते हैं दैट टाइम आई वाज अ थोड़ा मोटा स्टार था। मुझे सड़कों पे बच्चे लोग पत्थर मारते थे, लड़कियां छेड़ती थी, लड़के छेड़ते थे, लेकिन उसके बाद भी रिजेक्शन बर्दाश्त करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन की। उसके बाद एक छोटा सा प्रपोजल मेरा, वो भी डॉक्यूमेंट्री, अप्रूव हो गई। यू नो कि डॉक्यूमेंट्री आम लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन मेरे लिए प्रोडक्शन थी। मुझे लगा कि स्क्रीन पे मेरा नाम आएगा, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो जिस दिन यकीन मानिए उसका पहली बार टेलीकास्ट हुई वो डॉक्यूमेंट्री, में घर में बैठा, सबको बुलाया। मेरी माँ जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं भी करता था, वो 5 मिनट तो देखती रही डॉक्यूमेंट्री, फिर कहती है ये वही चीज है ना जो कोई देखता नहीं है। दिस वॉज अ एकदम ऑनेस्ट रिमार्क था। मैं कहा हाँ, ये वही चीज है जो कोई देखता नहीं है। बट आई डिड सीरीज ऑफ से 5 to 10 documentaries. Then I shifted to my forte, which was acting and fiction, producing and directing. अच्छा, एक और वहाँ पे बात आती है while producer and when you are both, वो जो आप challenges की या collisions की बात करते हैं, I'll tell you something very important. That's not in theatre, because theatre में पैसा होता नहीं है, तो you do it out of passion, so there's no collision. Television में producer has to manage the funds, he has to earn also profit, and director will say no, कुछ और भी करते हैं, इसमें ये भी डालते हैं, एक सीन बढ़ाते हैं, एक दिन शूटिंग का बढ़ाते हैं। तो there is a big fight between producer and director if they are 2 separate persons. But if one person is producer and director, you can imagine what will be having inside his brain or in his heart. उसका प्रोड्यूसर कहता कि यार बहुत दिल लग गए, पैसा बहुत लग गया, पैसा बचाओ। डायरेक्टर कहेगा नहीं, कुछ क्रिएटिवनेस नहीं आई, थोड़ा और करते हैं, पैसा तो लगेगा, एक दिन बढ़ाएंगे, कुछ उसमें फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। तो दिस आई हैव बीन फाइटिंग टिल डेट कि प्रोड्यूसर जीतेगा या डायरेक्टर जीतेगा, लेकिन मेरे केस में हमेशा डायरेक्टर ही जीता। प्रोड्यूसर हारता गया, वो पैसे से हारता गया, लेकिन क्वालिटी में डायरेक्टर जीता गया। जी मैं एक ही जीता। एक और बात बोलूंगा, आई हैव डन सम डायरेक्शंस फॉर अदर प्रोड्यूसर्स आल्सो, एंड दिस हैज हैपेंड प्रैक्टिकली विद मी। People used to come with the product that we want to this product to be directed by you. Say they have an amount of 10 lakh, 20 lakh, whatever. तो मैं क्या, have you come to me for quality or for earning money? मैं आपको पैसा भी कमा के दे सकता हूँ, मैं आपको क्वालिटी भी दे सकता हूँ, आपको चाहिए क्या आप बताइए, you decide. बोला दोनों में क्या, दोनों पूरा, दोनों में बीच में रह के काम कर लूंगा, लेकिन आपका एम एक बताइए, पैसा कमाना है या वो, कुछ तो बोलते नहीं पैसा ही कमाना है। फिर उनके लिए वैसे ही काम होता था, पैसे कमा के दे दिया, हाँ इतना बच गया, जाओ खुश रहो। एक प्रोड्यूसर ऐसा मिला, उन 65 सुबह हमेश मुझे क्वालिटी चाहिए। मैं कहा देन आई विल मेक अ प्रोडक्ट विच विल अर्न यू अवार्ड, एंड बिलीव मी उस फिल्म को अवार्ड मिला। द फिल्म वाज सुलमत, ज़ोर से सब उसको काम किया। देखिए मेहनत की जाए तो कोई भरोसा नहीं काम के ना हो। आई एम टेलिंग यू माई दीज थिंग्स। तो स्ट्रगल मेरी एक्टिंग जब थिएटर में की तब भी रही, मुझे कई बार थिएटर से निकाला गया। क्यों निकाला गया? मैं बदतमीज नहीं था, इंडिसिप्लिन नहीं था। उनको कहीं लगा शायद ये डोमिनेट कर रहा है बच्चा। बहुत सारी सियासतें होती हैं करियर में, आप भी समझते होंगे थोड़ा थोड़ा। उनको लगा ये बच्चा कहीं डोमिनेट करके हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। मुझे एक थिएटर ग्रुप से निकाल भी दिया। आज वो सब जिंदा हैं माशाल्लाह। वो मुझे फोन करते हैं, मुश्ताक कीप इट अप। आज भी एक मैसेज आया मेरा पोस्टर देखने के बाद कि मुश्ताक कीप इट अप, जिसने मुझे थिएटर से निकाला था। बट व्हाट आई डिड, अंडरलाइन माई लाइन्स। कल भी मेरा एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था, सर वो लोग हमसे जलते हैं, वो लोग हमको बुरा भला कहते हैं। मैं कहा कोई भी कुछ कहे, आपका जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, आप अच्छा काम करते जाइए। डोंट रिप्लाई इन वर्ड्स और लाइन्स। कोई कुछ कहे, आप अच्छा काम करो, वो खुद चुप हो जाएगा, उसकी बात अपने आप खत्म हो जाएगी। यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, तो ये कॉलिजन्स जो हैं ड्रामा के अंदर भी होते हैं, व्हाट वी कॉल इन ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट। टीवी सीरियल में भी होते हैं, सिनेमा में भी होते हैं। लेकिन वाइल डूइंग द ड्रामा, आई मीन आउटसाइड द ड्रामा, वहां पर भी कॉलिजन्स होते हैं। नहीं, आई मीन ड्रामा थिएटर में ही, उस टीम की बात कर रहा हूं अभी मैं, जिंदगी बाद में आएगी। द टीम ऑफ थिएटर ग्रुप, उसमें भी कॉलिजन्स होते हैं बहुत। जैसे मैंने कहा मुझे निकाल दिया गया, मैंने परवाह नहीं की, काम करता गया। वो भूल गए आज वो बात की, इसको हमने निकाला, मुझे याद है।
मेरी बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई है बचपन में। बचपन में तो छोटा था, अभी मैं थिएटर में बहुत लेग पुलिंग हुई है, बहुत सताया गया है मुझे सब याद है। वो कहते हैं ना कि मुझे याद सब है, ज़रा ज़रा उसे याद हो कि ना याद हो। मैं बहुत सताया गया हूँ, लेकिन मैं अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सताता नहीं, उनको मैं उससे डबल प्यार देता हूँ, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू व्हाट आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू। मैं उससे गुजर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट या मेरे बच्चे उससे गुजरे जिससे मैं नाहक गुजरा हूँ। उसके बाद टेलीविजन, सेम थिंग, वी हैव कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द ड्रामा, इनसाइड अ टेलीविजन और फिल्म स्टोरी। देन वी हैव अ ड्रामा विद इन द टीम। उसके बाद सबसे बड़ा ड्रामा जो है, जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा, वो जिंदगी का ड्रामा है, वो सबसे बड़ा ड्रामा है। जो मैं कहता हूँ अच्छा एक्टर नहीं है, वो प्रोफेशनली अच्छा काम नहीं कर सकेगा, जिसमें दो चार प्रोफेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है लीडर, शायद आज किसी ने इस पर बात थोड़ी सी की थी। ए लीडर हैज टू बी ए गुड एक्टर, ए टीचर हैज टू बी ए गुड एक्टर, a lawyer has to be a good actor, only then he can excel in his profession। तो ये एक्टिंग या कोई भी हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, चाहे वो सिंगर हो, पेंटर हो, कुछ भी हो, ये कॉन्फिडेंस उसको बहुत काम आता है, स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स का, जिसमें आपको बात करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग मिलती है। अब ये लंबा हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग में हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है, एक्सप्रेशन आता है, जो मैं अभी दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टिफ हूँ, एक हाथ में माइक है, एक हाथ में स्क्रिप्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। और मैंने लाइफ में दो तीन चीज़ें और बता दूँ, मैं आई एम नॉट गोइंग इन अ लीनियर वे, मैं थोड़ा इधर उधर की बात करूंगा, लेकिन सब बातें आपके शायद काम आए। आई हैव बीन इन एनसीसी ऑल्सो। इन माई 8th और 9th आई वॉज, अगर आप बात ना करेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। आई वॉज इन एनसीसी। तो पहले साल में वी वर टेकन टू क्रू, नहीं ऐश मुकाम, फॉर एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता था 10 दिन का। तो आई हैव अटेंडेड दैट एट ऐश मुकाम। आई वॉज जस्ट इन 8th। माँ को ये फिक्र थी ठीक से नहाएगा भी या नहीं नहाएगा, हुआ भी वो, मैंने वहाँ ठंड थी उधर नाले में ऐश मुकाम के, मैं ठीक से नहाया भी नहीं। नेक्स्ट ईयर आई वॉज सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे, दैट मीन्स रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ विच इज नाउ कॉल्ड कर्तव्य पथ। आपके इस भाई ने 26 जनवरी 1974 की परेड में हिस्सा लिया है। आई हैव डन मार्च पास्ट ऑन 26 जनवरी 1974 ऑन राजपथ। आई फील उसका जो वो ब्लेजर के ऊपर मिलता था, वो क्या बोलते हैं उसको, जो जी हाँ, तो वो आज भी मेरे पास संभला हुआ है, तो कभी मौका मिला वो दिखा दूंगा। तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी इन टाइनी एज ऑफ 9th क्लास। Then I joined NCC again in college. I'll tell you one thing. NCC आप लोगों ने खैर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा यहाँ किसी ने। That's a wonderful experience. You learn so many things. मैं अपनी लाइफ में NCC को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। I have learned a lot from NCC. Timing, the discipline, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, जो NCC में शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते थे, मुझे अपने इस सिंगिंग और एक्टिंग टैलेंट का पता वहीं चला था। जब एनसीसी में शाम को कल्चर, पता नहीं क्या होता कल्चर, गाना गाना मैं भी गा लेता था। तो सबने कहा तुम अच्छा आर्टिस्ट हो। एक और चीज़ बोलूँ मैं, उन्होंने बोला बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। मैं स्कूल में था, मुझे लगता था आर्टिस्ट होता है जो पेंट करता है या स्केच आर्टिस्ट। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वाला आर्टिस्ट मुझे पता नहीं। मैं ड्राइंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत, ये भी बता दूँ। तो मैंने कहा इनको कैसे मालूम मैं ड्राइंग अच्छी करता हूँ, इन्होंने तो मेरी ड्राइंग देखी नहीं। वो सब टीचर्स बोले या मेरे पेरेंट्स को भी बोला आपका बच्चा बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। मैं इन्होंने मेरा आर्ट कहाँ देखा, तो दे मेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिंगर या एक्टर। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा वो हेजिटेशन निकली। जब दिल्ली में था वहाँ भी, जब बाकी कैंप्स मैंने किए, और कॉलेज में मैंने बड़े इंपॉर्टेंट कैंप्स किए हैं। अब अजीब लगेगा लेकिन मैं सुनाऊंगा। एक क्रू में किया एनुअल ट्रेनिंग कैंप, दूसरा कैंप हमने मई के महीने में चेन्नई के पास एक सिटी है वेल्लोर, वेल्लोर या वेल्लोर बोलते हैं, तो वहाँ का मेडिकल कॉलेज बड़ा मशहूर है। वहाँ हमने किया है मई के महीने में, और नाक से हमारे खून बहता रहता था पूरे कैंप में, बिकॉज इट वॉज टू हॉट स्पेशली फॉर कश्मीरीज। वहाँ के डॉक्टर ने हमें बोला कि आप क्या मरने आए हो, आपको किसने बोला कश्मीर से इधर आने को, वो भी मई के महीने में। बट आई हैव डन एवरीथिंग ओवर देयर। वहाँ हमको 2:30 बजे निकाल के
फैन और एसी की तो बात ही नहीं थी, टेंट में नहीं बैठने देते थे। चलो जी सोशल सर्विस, गेंती और वो बेलचा लो और चलो नालियां बनाओ, सोशल सर्विस करो। वो भी किया है, बट दैट गेव मी स्ट्रेंथ। वो आज मैं याद करता हूँ, मेरे अंदर किसी भी उम्र में वो जोश वापस आता है, वो वाला। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कैंप किया, दैट वाज आर्मी अटैचमेंट कैंप। मैंने इन 35 साल किसी को बोला नहीं है मैंने वो कैंप किया है, बिकॉज वी आर मेड टू स्पेंड 20-25 डेज विद द आर्मी इन द आर्मी कैंप। प्योर आर्मी जैसे रहती है। हमको छमचोड़िए के सेक्टर में ले गए थे, जहाँ पे रियली आर्मी का कैंप है। वो बिल्कुल हमको अपने स्टाइल से रखते थे, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्लास होगी, कितने बजे ढाई। अच्छा, आर्मी कैंप में क्या होता था, 2:30 बजे के बाद छुट्टी। आप अपने जूते चमकाओ, अपनी पॉलिश, अपनी ये वर्दी तैयार रखो, अपने वो जो ये होते ना ब्रास के मेटल्स वगैरह उनको चमकाओ, तो यू कैन रिलैक्स। शाम को 6 बजे दोबारा क्लास होती थी, एंड दैट यूज्ड टू लास्ट टिल 9 और 10। हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। वो एस्ट्रोनॉमी मैंने कहीं नहीं पढ़ी है। नॉर्थ स्टार मुझे एनसीसी में सिखाया गया कि उसको कैसे लोकेट करते हैं। वो क्या सप्तऋषि करके होता है, गैलेक्सी 7 स्टार्स की गैलेक्सी, उसके एंगल से, दैट्स योर नॉर्थ स्टार। वो वहां पे पढ़ाते थे हमें मैप रीडिंग के लिए, सो दैट इफ यू आर लॉस्ट इन द नाइट यू शुड बी एबल टू लोकेट द डायरेक्शन। तो लर्निंग कहीं भी छूटती नहीं है। आप जहां कहीं आपको मौके मिले, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, और एक वक्त आएगा यू विल एक्सेल इन वट एवर यू डू। एनसीसी के बाद, कॉलेज के बाद मैंने प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन में क्या बताऊं, इनकलाब होता है चैलेंजेस का। कभी आपकी लड़की भाग जाती है, मेरे साथ हुआ जी, हाँ, आई मीन हीरोइन, सॉरी, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। एक पहले स्टेज की बात बताऊंगा। थिएटर प्ले कर रहे हैं श्रीनगर में, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्ले था, मैंने उसको इंग्लिश से हिंदुस्तानी ट्रांसलेट किया था। आई गॉट द कॉस्ट्यूम्स बिकॉज इट वॉज अ बंगाली प्ले, बट इन हिंदुस्तानी आई गॉट द प्ले दीज कॉस्ट्यूम्स राइट फ्रॉम कलकत्ता। किसी दोस्त को बोला मुझे धोती होती है, कुर्ता और साड़ी बड़ी भेज दी। आई गॉट द कंसाइनमेंट। अब मैं निकाल रहा हूँ सामान, लड़कियां 2 हैं उसी प्ले में। अब मैं बोल रहा हूँ ये साड़ी तू पहनेगी, ये तू पहनेगी। उसमें एक लेमन कलर की बहुत खूबसूरत साड़ी थी, मुझे भी वो अच्छी लगी। लड़कियों दोनों ने जब मारी ये मैं पहनूंगी, तो उसके दिन नहीं मैं पहनूंगी। अब 2 लड़कियों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, 2 औरतों की तो बात ही नहीं। मैं कहा यार छोड़ो, कोई नहीं, अब ले लो, कोई भी खत्म करो। हाँ, I'll tell you, this is a very serious thing. अब मैं कैसे करूं, प्ले भी होने वाला 2 दिन में, अगर दोनों में से एक हीरोइन भी नाराज होगी तो प्ले नहीं होगा। मैंने उठाया वो साड़ी, उठाई, अपने बैग में डाली। मैं कहा कोई भी नहीं पहनेगा, झगड़ा खत्म। नहीं, वो नाराज रही, वो हर रिहर्सल में लड़ती रही आपस में, लेकिन शुक्र है मेरा प्ले हो गया। और वो मैंने वो साड़ी, वो लेमन कलर की नंबर, मैंने किसी को पहनने नहीं दी। सोल्यूशन, समथिंग हैपेनिंग, दिस इज, आई एम टेलिंग यू, कोलिजन जिसको बोलते हैं, जो हर्डल्स आती हैं। आई वॉज डूइंग ए सीरियल ऑन गालिब साहब। अमरोहा एक शहर है यूपी में, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हेरिटेज सिटी है, वहाँ कर रहा हूँ। वहाँ पे अब जब रोल मैंने दे दिया गालिब की बीवी का किसी को, उसको लग गया ये 13-14 एपिसोड का सीरियल था कि 2 दिन शूट किया, वो नखरे करने लगा। नहीं मेरा दूध नहीं आया सेट पे, नहीं मैं बीमार हूँ, मेरी टांग खराब है, अब मैं क्या करूँ, 2 दिन शूट कर चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने फटाफट फोन करके दूसरी हीरोइन मंगाई, दिल्ली से मंगाई, मतलब दिल्ली से किसी को बोल के मैं कहा हीरोइन चाहिए अच्छी सी, दे आ गई। इसको मैंने आप चाहिए, नहीं कैसे, मैं कहा नहीं आप बीमार हैं, आपकी टांग को लगी, आप चाहिए। मुझे 2 दिन के सीन्स जो उस हीरोइन के थे सारे कैंसिल करने पड़े, और ये सारी टीम देख रही है, वो टीम सारी सीख रही है। अब वो 4-5 दिन अच्छे से चला, अब गालिब साहब पकड़ गए। उनको लगा हीरोइन तो बदल रही है, अभी हीरो नहीं बदल पाएगा, और 4 दिन के बाद तो नुकसान भी ज्यादा। और गालिब वाज इन एवरी सीन, उसके बगैर तो सीन ही नहीं था। वहां मैंने थोड़ा सा बर्दाश्त किया, जैसे कैसे। जिस दिन उसका लास्ट सीन हुआ, आज तक मैंने उसका फोन नहीं उठाया। मैं कहा बेटा तेरे वो 20 दिन थे, अब मेरे 20 साल। तो ये सब चीजें इंसान को स्ट्रगल करके आपको सिखाना चाहती हैं। अच्छा, आजकल मेरे साथ ये सिचुएशन आती है, मैं बच्चों अपने टीम के मेंबर को तो फॉरगेट इट, हाँ क्या बात है, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मेरे को पेशेंस और वो थोड़ा डिप्लोमेटिक, तब मुझ में डिप्लोमेसी नहीं थी। अब इज वेरी ब्लंट, गुस्सा कर देना, कुछ करना। अब अंदर आ गया, लड़का हो लड़की हो, हाँ एक पैसिफाइड थिंग, जो काम चलता है। तो वो कहते हैं ना कि बहुत दर्द सहते हैं तब जाके गजल कहते हैं।
तो इस रेजिलियंस, इस स्ट्रगल की अभी मैं कुछ किस्से सुनाए हैं आपको, कितने सुनाऊं उतने कम है। अब एक लास्ट जो मेरा इनिशिएटिव है उस पर आऊंगा मैं। दैट्स माई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विच आई एम डूइंग सिंस 2017। अब उसकी लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, इस एडिशन की सुनाऊंगा, विच वॉज फ्रॉम 1 नवंबर टू 7 नवंबर। मैं आपके NIT आया था, लेकिन तब आपका वो चल रहा था क्लास वास, तो तब वो आपके साथ कोलैबोरेट नहीं हो सका। मैम से मैं मिला था। यकीन मानिए सर, किसी ने जानबूझ के नहीं किया इस बार, लेकिन 5-8 जगह से मुझे डिसअपॉइंट होना पड़ा। मेरा एंकर निकल गया लास्ट मोमेंट पे, और एंकर के बगैर अब क्या करेंगे। आधा घंटा पहले एंकर कहता नहीं, मुझे तो आपने बोला नहीं, यू कॉल्ड मी जस्ट नाउ, मैं तो नहीं एंकरिंग करता। अब थोड़ा बहुत मुझे बोलना आता है। मी बीइंग द फेस्टिवल डायरेक्टर एंड द ऑर्गेनाइजर, आई डिड एंकरिंग माई सेल्फ। ये अभी 7 तारीख की बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है काम का। कौन सा मेहमान आया है, अच्छा एक और बड़ा मेहमान, नाम नहीं लूंगा उसका, ही कमिटेड 1 डे बिफोर, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। मैं कहा लेटर, बोल लेटर लीजिए, डन है। उसके पीए मुझे फोन कर रहे हैं, कितने बजे आना है, क्या आना है। और यकीन मानिए 1 घंटा पहले उसका मेरे टीम मेंबर को फोन आता है कि भाई वहां देखो, वहां कम से कम 100-200 लोग होंगे तब मैं आऊंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जब 100 लोग जमा हो जाए उसको फोटो भेजना, मैं फोटो भेज देना। 10 मिनट पहले मुझे फोन आता है डायरेक्ट किसी स्टाफ का, सर को किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे। शुक्र है मैंने वक्त से सीखा है, अपने तजुर्बे से सीखा है कि ऐसी चीजें अनाउंस मत करो। मैंने अनाउंस नहीं किया था, ओनली 2 or 3 ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स न्यू इट के वो साहब आ रहे हैं, बड़े साहब थे वो। तो मैंने क्या किया था, 2 दिन पहले मुझे थोड़े उसके मतलब जो गेस्ट ऑफ ऑनर के लेवल के लोग थे 2-4 बुलाए थे, उनमें कुछ मर्द हजरात भी थे, खवातीन भी थी। तो अब जो आ गए, मैं कहा इनमें जो भी टॉप है उसको मैं चीफ गेस्ट बना दूंगा, क्योंकि अनाउंस किया नहीं है। और आमतौर आपको बता दूं, आप भी इसी शहर में हैं, J&K में खासकर, चीफ गेस्ट आपका कोई हो अनाउंस मत कीजिएगा, कार्ड पे मत लिखिएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, लिख के आपकी खजालत हो जाती है। आप लिखते हैं वो नहीं आता, आपकी नाक कटती है। जब लिखा ही नहीं हो तो आप अंदर से मरेंगे ना, बाहर से तो नहीं मरेंगे। मैं नहीं लिखता हूं, उसने बोला पक्का है। एक साहब ने मुझे लेटर भी दी थी, कहा आप भी लेटर दो, मैं भी लेटर दूंगा। मैंने लेटर ली, अनाउंस नहीं किया, कार्ड में भी नहीं लिखा। मैं जब आएगा सब देख लेंगे। इवन दिस हैपेंस विद फिल्म स्टार्स, मुझे फिल्म स्टार्स बुलाने पड़ते हैं। जिसने अपना ID कार्ड दे दिया टिकट बनाने के लिए, और शाम को कहता नहीं टिकट नहीं बनाना, मैं नहीं आ रहा। एंड दैट हैपेंड विद एटलीस्ट 4-5 फिल्म सेलिब्रिटीज। लेकिन मुझे यहाँ पूछते थे जर्नलिस्ट, फिल्म सेलिब्रिटी कौन? मैं बहुत सारे आ रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस हैज टॉट मी। आई डोंट नेम, हाँ मैं टेंटेटिव लिस्ट 10-15 की दे देते हैं कि आई एम इन टच विद दिस, नो कमिटमेंट। जब तक वो टिकट लेके भी कैंसिल हुए हैं सर, टिकट भी लेते हैं, वो वेस्ट भी करते हैं मेरी। एक बड़े साहब ने, नाम नहीं लूंगा, कश्मीरी हैं, मुझे शौक था उनको अपने फिल्म फेस्टिवल में बुलाने का। ही सेड कि मैं आई एम इन सच ए एज आई कैन नॉट ट्रैवल अलोन, माय सन विल ट्रैवल। एंड ही गेव मी द चार्ट कि कहाँ से मैं किस फ्लाइट में आऊंगा, फिर यहाँ से ये फ्लाइट लूंगा, वहां से। मैं कहा सर डन, क्योंकि जिसकी इज्जत की तो भरपूर की। आई हैड टू स्पेंड 95,000 ऑन हिज टिकट्स टू एंड फ्रो। एंड 1 डे बिफोर ही सेज सॉरी, मुझे डॉक्टर ने मना किया, आई कैन नॉट ट्रैवल। मेरे 95,000 का क्या हुआ? वो हराम के तो नहीं थे। अब मैं वैसे लोगों को क्या करता हूँ, एक करके टिकट भेजता हूँ, एडवांस में भेजो। मेरी टिकट बहुत सेलिब्रिटीज ने वेस्ट की है। अब आइए, मुझे खुशी होगी। आप गाड़ी मांगिए, 4 दिन घूमने को बोलिए, मुझे खुशी होगी। लेकिन टिकट देकर नहीं आएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अभी रजा मुराद साहब आए थे, ही सेड आई विल कम विद माय वाइफ। मैं कहा सर मोस्ट वेलकम, आइए। सो आई विल स्टे देयर फॉर 4 days। मैं कहा सर मजे से। उनका काम सिर्फ 1 दिन था इनॉग्रेशन पे, बाकी दिन वो नहीं आए। उन्होंने बोला मैं घूमूंगा। मैं सर गाड़ी आपके पास है, होटल का कमरा आपके पास है, आप घूमिए। बिकॉज ही ऑनर्ड मी एटलीस्ट, इनॉग्रेशन पे तो आए, मेरा मान तो रखा। और भी 2 लोग आए, वो 1 दिन 2 दिन की नोटिस पे आ गए। क्लोजिंग पे 4 लोग और थे जिनकी टिकट बनाने वाला था मैं, शुक्र है बनाई नहीं थी, नहीं आए। सो दिस इज ऑल वी हैव टू गो थ्रू, वेदर आई एम डूइंग अ थिएटर प्ले, वेदर आई एम डूइंग अ रेडियो प्ले। रेडियो टीवी में एक चीज की गुंजाइश है कि रीटेक है, आपका पैसा लॉस होगा, आप ब्लैकमेल नहीं होगे। लेकिन स्टेज पे आप ब्लैकमेल हो जाते हो। मान लीजिए हीरो की, हीरोइन की एंट्री है, वो वहां मुकर जाए, आप क्या करेंगे? कितने रोल करेंगे? वहां पे फिर कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव फेस्ड थ्रू आउट माई लाइफ। अब ये सेलिब्रिटी नहीं है तो किसी को पता ही नहीं कौन आने वाला है।
That's only between me and between that celebrity. Nobody knows कि किसके साथ मेरी कमिटमेंट हुई थी. और क्या होता है, जिसके साथ मैं 4 महीने से कमिटमेंट कर रहा हूँ वो रह जाएगा. और 2 दिन पहले अचानक किसी ने बोला यार मेरा वो दोस्त है उसको बुलाओगे. मैं कहा हाँ अच्छा नाम वाला बुलाइए. तो इट्स लाइक दैट. हमको मतलब अब इस एज के स्टेज पे वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, एनी कॉलिजन यू कैन कॉल इट, एनी कॉन्फ्लिक्ट. आई एम रेडी. हाँ बाकी घबरा जाते हैं. एक और छोटी सी बात याद आई. सोशल मीडिया पहले नहीं था, जब 17-18 में इतना तेज नहीं, आजकल तेज हो गया है. तो मुझे वो भी ख्याल रखना है कि हमारा कश्मीर का माहौल थोड़ा सेंसिटिव है. यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल करना कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, मुझे वो भी फेस करना है. किसी ने बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया, मैं कहा कौन है क्या है, लिंक मंगाया, जाने दो, इग्नोर करो. किसी और ने भी लिखा कुछ, वो इंडिविजुअल था, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उसने नाम नहीं लिया हमारा, लेकिन हमारी कहानी लिखी. तो मेरी टीम के वो चिढ़ गए, नहीं नहीं इसको जवाब छोड़ो यार, जाने दो, मेरा क्या हो जाएगा. नहीं नहीं वो बदनाम करेगा. मैं कहा बदनाम कोई ऐसे कर लेगा क्या, करे. तो आजकल सोशल मीडिया, आप सब समझते हैं इस चीज़ को, सोशल मीडिया में मामला बड़ा सेंसिटिव हो गया है. कोई मामूली आदमी आपका रिव्यू आपके प्रोडक्ट का या आपके बारे में कुछ लिख सकता है, तो लिखे ना. आई बिलीव स्ट्रांगली इन सत्यमेव जयते. आखिर में सच्चाई की जीत होगी. जो ऐसे बोलता है बोले, चाहे सोशल मीडिया पे बोले. कई बार पहले अखबार, तब सोशल मीडिया नहीं था, अखबारों में हमारा निकला झूठ मूठ का. मैं जाके अखबार वाले को पकड़ में, क्या बात. बोले क्या मैं वो अखबार किसने निकाला. हाँ पता नहीं किसने न्यूज़ दी थी. मैं कहा बुलाइए उसको. आज उससे तो दोस्ती हो गई है, मैं छींक भी मारता हूँ तो मेरे 4 बार कवरेज देता है अखबार में. तो दिस इज ऑल वी हैव गॉन थ्रू. अब लास्ट में बिफोर सिटिंग ऑन माई चेयर आई विल टेल यू that you continue your whatever you are doing. Don't be afraid of or scared of anything. Have consistency, have continuity in whatever you are doing and whatever you want to do. You will get success. And success, one more thing, success is a relative term. किसी के लिए होगा डॉक्टर बन गया सक्सेस हो गया, किसी के लिए डॉक्टर भी कुछ भी नहीं है रास्ते का, वो एक पत्थर है, एक संगमील है. तो इट्स रिलेटिव टर्म फॉर एनीबडी. बट whatever your aim is, if you achieve that aim, that's your success. And secondly, success is not the manzil or us jagah pe pahunchna, destination. The success is on the way, when you enjoy while walking or running towards that destination. Thank you very much.